केमिस्ट्री वाला टॉपिक, it's a topic which is from chemistry, but of course is there in biology because we it is about certain molecules. क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक, we have discussed about the cell, we have discussed about the important mechanism that is cell cycle and cell division. Yeah. तो सेल पढ़ा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ी है. नाउ see, so many biochemical reactions are taking place inside the body within the cell. Cell के अंदर बहुत सारे chemical reactions होते हैं, right? Now, since there are so many chemical reactions which are taking place, so it is naturally important for us to understand as to how and from where all these chemical reactions are taking place and what is that which is responsible for this. Now, common language में अगर मैं बोलूं तो for any chemical reaction to take place, कोई भी chemical reaction अगर होता है तो naturally we know that there are two chemical reactions. कौन सा? एक होता है breakdown process. अरे यार एक मिनट, आज ये हिंदी संस्कृत के पेपर ने वाट लगा दी है. चलो आ गया मैं वापस. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस. ओके, कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. लॉट ऑफ वी कॉल दैट एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में दो ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं. वन इज नोन एज द ब्रेकडाउन प्रोसेस कॉल्ड एज द कैटाबॉलिज्म and the other one is known as the building a process that's known as anabolism, right? अच्छा, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस नेचुरली, अगर केमिकल रिएक्शंस है तो ये दोनों के लिए भी हम लोगों को क्या लगेगा, फॉर बोथ दिस वी विल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. And as we all know that all these chemical reactions are taking place in the presence of water, so we will require water also and some other elements which are also required to produce all these different types of chemicals. Meaning बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लगते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस. द चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. When we say biomolecules, basically we are here talking about this particular concept ki how these chemical reactions are taking place, what all those basic substances which are responsible for these chemical reactions. Just say for example enzymes. If I say enzymes are generally made up of what? Can anyone tell me? Enzymes are made up of what? Proteins. Very good, Sanika. Or proteins or कार्बोहाइड्रेट. सो वी कॉल दैट एज व्हाट? प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसा भी बोलते हैं. बराबर है? फैटी एसिड्स. वेरी गुड, फैटी एसिड्स. क्या हो गया? इसने हाथ ऊपर किया है. कौन है हाथ ऊपर किया हुआ? यस, व्हाट हैपेंड मिस्टर अद्वय? कुछ नहीं, गया. ओके, सो बेसिकली ऑल दीज सब्सटेंसेस, फैटी एसिड्स हो सकता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. तो नेचुरली व्हाट डू वी रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स. So some organic elements, some inorganic elements, they are all required for all these chemical reactions, and this chapter is all about that. Okay, so let us understand what this cellular pool is and what are the metabolic reactions which are taking place. When I say cellular pool, जब हम लोग cellular pool की बात करते हैं, see we all know that every organism starts its life as a single cell and the entire body is made up of cells. पूरा body cells से ही बनता है. Okay, now the cell will have different types of substances. अमूली इधर से शुरुआत कर लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, start writing from here only.
ओके बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर होता है, ठीक है, या फिर सेल विल हैव प्रोटीन्स, या फिर द सेल विल आल्सो हैव द फैट्स और दैट्स कॉल्ड एज द लिपिड्स, और उसके साथ साथ सेल विल हैव सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स। सी दीज आर द मेजर प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर फाउंड विद इन द सेल, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है which are required. Along with that there are some other nutrients also which are like organic or inorganic, mostly inorganic, ठीक है, so they are also necessary, but these are the ones which are most important and the major elements, ठीक है ना। when we talk about this, जब हम लोग ये चैप्टर की बात करते हैं which is of course the concept of biomolecules, जिसमें ना हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि what are all those substances present within the cell, क्या क्या होता है सेल के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सर्टेन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल द सेल विल हैव वाटर, द सेल विल हैव सॉल्ट्स, द सेल विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो ये सब रहेगा, ठीक है। सो वी कॉल देम एज व्हाट, इनऑर्गेनिक। आई होप एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। डू यू ऑल नो? Yes, very good. I hope everyone knows this. Organic substances are the one which contains both carbon and hydrogen together, and inorganic substances are the one which has either carbon or hydrogen in them. जैसे water H2O has only hydrogen, no carbon. Salt, sodium chloride, potassium chloride, etc. Minerals, various different types of minerals. So these are all inorganic substances. Whereas the cell will also have certain organic materials. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल लिपिड्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे C6H12O6, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग बोथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन टुगेदर, करेक्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, ये सब मिलकर बनता है एक सेल का सेल्यूलर पूल। ये दोनों मिलकर मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिलकर बनता है एक सेल्यूलर पूल। ओके मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहां पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, एंड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स विल वर्क इन सच अ वे और विल कंबाइन इन सच अ वे दैट दे विल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स which are required for lot of metabolic actions which are taking place. So all the chemical reactions that occur in a living cell is known as metabolic reaction or also known as the metabolism. जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं उसको सबको मिलकर, सारे केमिकल रिएक्शंस को मिलकर वी कॉल दैट एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन और आल्सो नोन एज द मेटाबॉलिज्म। लास्ट स्लाइड प्लीज। हाँ ये लो, ये है लास्ट स्लाइड। डन सर। ओके एक मिनट है बच्चों। Just give me a minute.
Students, just give me 2 minutes. I will be back. Give me 2 minutes. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एज अ सेल्युलर पूल. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक सेल्युलर पूल विच इज इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट, जिसमें वी हैव दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज वेल एज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मेरी आवाज आ रही है ना सबको अभी? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अरे बाप रे, ये कौन है? ओके, चलो. सो सेल्युलर पूल का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. देन द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितना भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होता है, वी कॉल दैट एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये हम लोगों ने बहुत पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, राइट? और मेजर 2 रिएक्शंस होते हैं. कौन कौन से? तो सबसे पहला जो रिएक्शन आता है दैट्स कॉल्ड एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड द अदर वन इज नोन एज द एनाबॉलिक रिएक्शन. व्हेन आई से कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या आता है? कैटाबॉलिज्म का मीनिंग आता है ब्रेक डाउन प्रोसेस. So the one which helps to convert the complex molecule into a simpler one. Okay, Tanishq Tambut is saying, sir, last slide. Tanishq Tambut, किधर रहते हो? अचानक दिखने लगे तुम मुझे. Thank you. तुझे हो गया तनिष्क? Okay. So 2 metabolic reactions. One is the catabolism, or also called as catabolic reaction, which is nothing but to convert complex molecules into a simpler one. जो हम लोग जैसे digestion में हम लोगों ने पढ़ा था, if you remember, starch is broken down to produce glucose. So here the complex substances are converted into a simple one. So we call this as the typical catabolism, a reaction known as catabolism. Okay. So breakdown process. उसके बाद, so reaction wherein complex molecules are broken down to simpler molecules.
right? So this is known as the catabolism. So that's the definition of catabolic reactions. आप चाहे तो इसको लिख सकते हो. Then we have anabolic reaction. Now when I say anabolic reaction, Sir, last anabolic, slide. हाँ ये लो, हो गया, एक सेकंड अमन. Done? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लो बोलो, लिखो लिखो. Done, sir. या एक मिनट. हाँ चलो एनीवे, तो ये हो गया आपका कैटाबोलिक रिएक्शन. कैटाबोलिक रिएक्शन के बाद द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज कॉल्ड एज द एनाबोलिक रिएक्शन. एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द कैटाबोलिज्म और कैटाबोलिक रिएक्शन. एनाबोलिज्म में ऑपोजिट होता है. जैसे we have simple compounds, simple molecules or simpler substances which then combine together to give rise to a complex molecule. So इससे बनता है complex molecules. So we call this as building up process. Okay, so the reactions wherein biosynthesis of new molecules takes place from the simpler one. जो simple होते हैं उसमें से combined करके new molecules बनते हैं which are going to be more complex. Okay, so this is known as the anabolic reaction. So we have one reaction that is breakdown reaction. There is another reaction which is known as the building up reaction. So breakdown process and building up process टुगेदर, ये दो मेन रिएक्शंस है और ये दोनों मिलकर बनता है हमारा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, सो और आल्सो नोन एज द मेटाबॉलिज्म, राइट. तो ये दो रिएक्शंस है. तो हम लोगों को अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हु ऑल द आर दीज केमिकल्स और द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दीज ब्रेकडाउन प्रोसेसेस एज वेल एज बिल्डिंग अप प्रोसेस. जैसे for example, if we have to start with all these organic or inorganic substances, so the substances that are intermediate or products of metabolic reactions, they are all known as the biomolecules or also called as the metabolites. Okay, so either we call them as the biomolecules or we call them as the metabolites. ठीक है, जैसे the metabolites can be of again two different varieties. One is going to be a primary metabolite. When I say primary, meaning it is the most important, मतलब इसके बिना बॉडी के एक्शंस, रिएक्शंस, फंक्शंस पॉसिबल ही नहीं है. एंड देन वी हैव द सेकेंडरी मेटाबोलाइट व्हिच इज गोइंग टू बी body won't have it.
ओके, सो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स आते हैं. वन इज योर या मेरा नेट कनेक्शन वापस डिस्टर्ब हो गया. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर, अभी आ रहा है. ओके ओके, चलो. सो वन इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड द अदर वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. पहले इसको लिख लो. Done, sir. या जस्ट अ मिनट. ओके, सो आई होप दिस इज डन. यू पीपल हैव रिटन. चलो देखते हैं कौन कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हो सकते हैं. बाय द वे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? कौन कौन से हो सकते हैं? अंदाज ऐसे ही तुक्का लगाओ. What, sir? Repeat. वेरी गुड. ग्लूकोज, पेप्सिनोजेन. ओके, अमन ने पता नहीं पेप्सिनोजेन कहाँ से लाया. आदित्य क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क. ग्लूकोज लिखा है आदित्य ने. ओके फाइन, ग्लूकोज इज आई थिंक करेक्ट आंसर. व्हाट इज ग्लूकोज बाय द वे? Glucose ऑर्गेनिक is कंपाउंड. which type of, what is it called as? Sugar. No, together. ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं ना हम लोग उसको. यस सफोरा, C6H12O6 करेक्ट. केमिकल फॉर्मूला बोला उसने. यस सफोरा करेक्ट. कार्बोहाइड्रेट्स, सैकराइड. फाइन सानिका, बट देन वी कॉल देम एज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स जिसको हम लोग बोलते हैं. दीज आर ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज द primary metabolites. So the substances which are involved in the growth of the organism, the substances which are involved in the development of the organism, how the organism develops, so उसमें जो होते हैं involve वो, and then the substances which are involved in the reproduction. तीन important mechanisms. So whichever chemical or a substance which is involved in all these three mechanisms is known as the प्राइमरी मेटाबोलाइट. जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेचुरली वी विल रिक्वायर व्हाट? वी विल रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट? फॉर रिप्रोडक्शन आल्सो सिमिलरली वी विल रिक्वायर दीज मेजर एलिमेंट्स, राइट? सो व्हाट आर दीज? जैसे फॉर एग्जांपल, एज वी हैव सीन, sugars is one example, that is carbohydrates. Then we have the amino acids which are nothing but the proteins, and then we are going to have fats and oils which are nothing but the fats or lipids. Okay, so these are the three major substances which are considered as the primary metabolites, right? Ye lo last slide. Okay, primary metabolites are, sir, tomorrow is offline lecture of Nasik. हो सकता है पीयूष, बोलता हूँ मैं. Primary metabolites are all under anabolism because growth and, हाँ बराबर, correct सफोरा. You can say that, but not necessarily. Catabolism में भी enzymes लगते हैं ना breakdown में, तो उधर भी यही लगेगा. ओके सफोरा, क्योंकि कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकडाउन प्रोसेस, और ब्रेकडाउन प्रोसेस के लिए आल्सो वी रिक्वायर एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ईदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. ठीक है सर. हाँ, सर लास्ट स्लाइड. कौन सा? ये वाला ना? नहीं सर, इसके पहले वाला. वो तो था ही ना चालू.
सर मेटाबोलाइट्स वाला वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हाँ ये। डन सर। हाँ, okay. So for example, we have sugars, we have amino acids, we have fatty acids or fats. Okay, along with that, then we are going to have secondary metabolite, जैसे the compounds other than the primary metabolites produced by plants, fungal and microbial cells. ठीक है, फंगाई से प्रोड्यूस, अच्छा फंगाई या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? फंगाई या बैक्टीरिया से क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कलॉइड्स। एक मिनट, सब पागल हो गए सब स्टूडेंट्स। एक मिनट। चलो अभी शायद कुछ आएगा नहीं। So basically secondary, yes, somebody was asking amino acids, okay, ammonia is a product of fungi, ठीक है, लेकिन अच्छा ऋतुजा ने लिस्ट ही बना दिया, पिगमेंट्स, अल्कलॉइड्स, टॉक्सिन्स, lectins, drugs, polymer, very good. So basically these are all, जैसे for example commonly known product which is useful for human beings is the antibiotics, right? So these are all called as the secondary metabolite. जैसे so their role is still not known in the host cell but are important in the human welfare. Humans के लिए important होते हैं, जैसे for example we have antibiotics, okay, for example we have rubber जो हम लोगों को प्लांट से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव इसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड ऑयल होता है, यूकेलिप्टस ऑयल होता है, आलमंड ऑयल होता है, तो ये सब होता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स as rightly said by Rutuja. So these are all called as what? These are all known as the secondary metabolites, meaning these substances will not be useful for growth, development and reproduction, but yes, they are equally required. राइट अच्छा, अभी जैसे वहां पे था कि देयर रोल इन द होस्ट सेल इज नॉट नोन, मतलब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरिया में क्या रोल है, बैक्टीरिया को क्यों चाहिए, इज नॉट नोन। इसेंशियल ऑयल्स जो सैंडलवुड में बनता है, आलमंड से बनता है, तो उसमें उसका क्या रोल है,
यानी सैंडलवुड के जो सेल्स होते हैं इसके लिए उसका क्या रोल है, दैट इज नॉट नोन. ओके, बट स्टिल दे आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. तो लोहिता कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए आपको बेटा, ये वाला, दिस वन. Yes, correct, Aman. They are essential economically. Done? Lohita? Yes, sir, done. Okay. चल, अरे अमन अभी तू छोड़ दे जगह, बाद में देखते हैं. Okay, now all compounds of the cell, all these different compounds of the cell, so basically they will have the molecular weight. Either the molecular weight will be from 18 to 800 daltons, या फिर they will have the molecular weight from 800 to 10,000 daltons. Molecular weight इनका अपना खुद का रहेगा. So cell में you can say that the range of molecular weight is from 18 daltons to almost 10,000 daltons. करेक्ट. तो अभी ये क्या होता है, व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स, हाउ आर दे डिफरेंशिएटेड एंड डिफाइंड. सो द molecules, or rather you can say metabolites having molecular weight of 18 to 800 daltons, they are known as the micromolecules. किसी ने तो अभी पहले ही डाला था शुरू में, लेकिन वो बाद में आया. ठीक है, so they are called as the micromolecules, the one which is a very small substance. Like for example, we have salts like nitrates, sulfates, phosphates. So these are all known as the micromolecules. या फिर simple sugars like glucose. So these are the micro. When I say micromolecule, मतलब comparatively simpler forms. Okay, so simpler forms having the molecular weight of 18 to 800 daltons. So that's the range of micromolecules. Okay, तो उसमें सिंपल शुगर्स की बात की है, डायसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स नहीं आएगा, इसमें सिंपल शुगर्स आएगा, जैसे ग्लूकोज है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोमोलिक्यूल, right? Whereas we have a molecular weight of the substances which is almost 800 to 10,000 daltons. Now these substances naturally will be called as what, जिनका weight ज्यादा है तो इनको हम लोग बोलेंगे macromolecules. For example, we have carbohydrates, we have proteins, and we have lipids or fats, the complex forms. जैसे डायसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स जो चेन ऑफ अमीनो एसिड से बनता है, लिपिड्स या फिर फैट्स जो चेन ऑफ फैटी एसिड से बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है. तो ये बन गया हमारे लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन दिस. बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन एसिडिक इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस आर मैक्रो. यस, करेक्ट खुशी, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं लिखा तो भी चलता है. ठीक है सर, लास्ट स्लाइड. हाँ, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए, फर्स्ट वाला. ये वाला? नहीं सर, इसके भी पहले वाला. इसके भी पहले वाला. ये यस सर. चलो हो गया. यस आदित्य. So will you please show the examples of secondary metabolites? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल क्या क्या है बोल दो बच्चों. Pigments, rubber, एंटीबायोटिक्स होता है, antibiotics, essential oils, essential oil, pigments. ओके, इसेंशियल ऑयल्स, पिगमेंट्स, एंटीबायोटिक्स एंड Rubber. रबर. ठीक है आदित्य. Yes, sir. Thank you, everyone. या हो गया ये लिख के. चलो Yes, ये sir. लिख लो, मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल्स लिख लो. डन. Done, sir. And this one is macromolecule. These are Sir, the previous side. हाँ, कौन सा? मैक्रोमोलिक्यूल्स वाला. This one?
Yes, sir. Fructose is which type of sugar? Sahil. फ्रुक्टोज कौन सा शुगर है साहिल? मोनोसैकेराइड, बराबर है। हाँ, वेरी गुड, मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड्स कहाँ पे आएंगे? Micromolecule. वेरी गुड, सिंपल। ठीक है। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स में बेसिकली जैसे मैंने डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की बात की ना, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में, सो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड, सो दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड इवन न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो, दैट इज आल्सो, ये रह गया था। सो इवन nucleic acids which are also considered as the type of macromolecules. अच्छा, nucleic acid मतलब क्या? The one which is responsible for formation of the DNA. अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि DNA, how DNA is formed. So basically we have pentose sugar, then there is phosphate molecule PO4 जिसको हम लोग बोलते हैं, and then we have nitrogenous base. Nitrogen bases are like adenine, guanine, cytosine and thymine. तो ये जो होते हैं ना, these are called as a nucleic acids. So they are also a type of macromolecules. Correct, Sophia. Nucleotide, as we discussed. Okay. Now, since we have understood this particular composition कि सेल के अंदर क्या होता है, this is the average composition of the cell. यानी कैसा cellular component कैसा होता है. So water is almost 70 to 90%. Proteins are 10 to 15%. Carbohydrates are 3%. Lipids are 2%. न्यूक्लिक एसिड्स आर 5 to 7% एंड आयंस आर 1%. यानी इतना ज्यादा ये सारा होता है. ठीक है, रेंज है 70 to 90, 10 to 15, ये रेंज है. ठीक है. सो इन दिस रेंज ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट, सो वी कॉल दिस एज सेल्यूलर कंपोनेंट्स. तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा होता है वाटर. ये सेल के मास नहीं है अमर, दिस आर द दिस इज द परसेंटेज ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द सेल. हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे बोल रहे हैं ना, तो वो कितना होता है? सो वाटर इज ऑलमोस्ट 90%, प्रोटीन्स आर ऑलमोस्ट 10 to 15%, ऐसा है. तो सबसे ज्यादा वाटर है और उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स और बाद में आते हैं न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो. आगे भी 2-3 टेबल्स है, बताता हूं मैं. अनन्या किधर गई आज? अनन्या आई नहीं है. कल का लेक्चर शायद उसको बहुत भारी पड़ गया क्या? टेंशन में गायब हो गई वो. आज वुडरिच के सिर्फ 6 ही लोग हैं. किधर गए सब लोग? सर, हाँ इस टेबल के ऊपर से नीट में क्वेश्चन आए हैं क्या अभी तक? हाँ हाँ, इसके लिए तो बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है. क्या हुआ आदित्य, यू वांटेड टू से समथिंग? सर हियर ओनली. आई नो मिनल, आप हो. अच्छा, मिनल एक है. अच्छा, तो यानी 7 हो गए. कम है लेकिन आज पता नहीं किधर गए. ओके चलो, हो गया ना लिख के ये. Okay, so now we are going to understand all these molecules one by one. मतलब carbohydrates, proteins और fats, इन सबको हम लोग एक एक करके अभी पढ़ने वाले. So let's begin with the first one, that is the carbohydrates. So carbohydrates are what? So they are the complex forms of organic compound. So carbohydrates are the organic compounds which are produced. The major source of carbohydrates is always going to be the photosynthesis. ओके, अमूली कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा? ये, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लिखा है. दिस वन.
अमुली, हेलो। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये वाला, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखने का? सो दिस वन, या सो बेसिकली सर हो गया। हो गया। Okay, so carbohydrates are what? So they are basically the organic compounds which are produced in chlorophyll. Now this is very important. So basic or major source of carbohydrates is always the plants, क्योंकि plants are going to do a mechanism or process of photosynthesis which helps in the production of glucose. जैसे for example we have this typical chemical reaction. So in the presence of sunlight, the carbon dioxide will be trapped by the leaves. Then water will enter through the roots. Now inside the chloroplast or with the help of chlorophyll, the carbon dioxide and water will be converted into a glucose. So 6CO2 plus 12H2O or 6H2O, तो water इधर नहीं आएगा. In the presence of light, chlorophyll and sunlight, it will give rise to C6H12O6 plus 6O2. अगर यहाँ पे अगर हम लोग इधर 12H2O लिखते हैं तो यहाँ पे एक 6H2O ऐड हो जाएगा. ओके, दिस इज नोन एज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन. करेक्ट. ये जो रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन, जिससे मिलता क्या है? जिससे हमको मिलता है ग्लूकोज. राइट, ठीक है. चलो ये लिख लो फटाफट. सर लास्ट स्लाइड. कौन सा लास्ट स्लाइड है? सर कार्बोहाइड्रेट्स वाला. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिखा हुआ है उसके ऊपर. ये सर ये वाला. हाँ हो गया. डन सर. ओके. अनन्या, अनन्या को किसी ने तो भी ढूंढ के लाया, पकड़ पकड़ के लाया. किधर घूम रही है रे? सर मैं थोड़ा देर खेलने गई थी बैडमिंटन. थोड़ी देर खेलने गई थी. फटके मारने चाहिए तुझे अभी. कल मैंने बताया था आप लोग अपना हॉबीज कर सकते हो, तो लेक्चर छोड़ के नहीं करने का. चलो ठीक है, आ गई ना तू अभी? हाँ सर. पानी पिया क्या? हाँ. हाँ, गुड गुड. एलरॉय ने कॉल किया. एलरॉय स्मार्ट है अपना. चलो ठीक है. ये केमिकल रिएक्शन है. सर एलरॉय ने मुझे बोला था चल साथ में बंक करते हैं. है ना? नहीं सर. सारे लोग फटके मारूंगा मैं उधर आके, नहीं तो इधर से ऑनलाइन फटके मिलेंगे. चलो एनीवे, स्टार्ट नहीं कर रहा सर लेक्चर. हाँ ठीक है एलरॉय, इट्स ओके. सर लास्ट स्लाइड. सबसे फनी रिएक्शन एलरॉय का था, लेकिन जब मैं आया था पहले वहां पे, है ना एलरॉय? सर आपने उसको वो सब कुछ बताया, वो और कंफ्यूज हो गया. जैसे ही क्लास में आया एलरॉय मुझे बोलता है सर आप कितने लंबे हो. सर वो टेररिस्ट बनने का सोच रहा है. अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. ऋतुजा बेचारी पूछ रही है बहुत मजा किया क्या? मजा नहीं किया, हम लोगों ने बहुत सारा लर्निंग किया कल. ओके. एलरॉय माइक ऑप्शन. टेड टॉक था कल. टेड टॉक था मेरा कल. आई नो यार. एलरॉय तुझे माइक ऑप्शन चाहिए तो हाथ ऊपर करना भाई मेरे. सर अनन्या उसके माइक से बोलने नहीं दे रही है ना. तू बोल मत उसके माइक से ना, तू तेरे ही माइक से बोल. हाँ उसके लिए थैंक यू सर.
सर आप नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ाया सोफिया, उनको पढ़ाया कुछ नहीं है। आप लोगों से भी बात करनी है सोफिया, उनको कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। वी वर जस्ट डिस्कसिंग सेम, जैसे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया, बस वैसा ही डिस्कशन मैंने उनके साथ भी किया। करेक्ट? तो हर एक का सेंसिटिविटी अलग होता है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं, तो वैसा बात किया मैंने। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस एज अ मैकेनिज्म। 2 लोग और आ गए जिन्होंने हाथ ऊपर किए हैं। कौन है ये? कौन रहो? निशिता एंड पायल। क्यों लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग? व्हाई आर यू लेट? ओके लोहिता कार्टून है। हाँ बराबर। अच्छा यू आर देयर बट माइक ऑप्शन आपने अभी लिया। ओके फाइन। सर यस। स्लाइड में ऊपर रेडियस फॉर्म क्यों लिखा है सर? अरे वो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में ना बेटा, प्लांट विल यूटिलाइज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे एडिशनल 6 H2O रिलीज हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने कितना लिया है वाटर? 6 H2O लिया है ना, यानी हाफ लिया है। तो यहाँ पे वाटर नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ 6 O2 दिख रहा है, राइट? तो इसके लिए ये केमिकल रिएक्शन जो आपके सामने ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन। यस सर। मतलब प्लांट अपने आप को कितना एडजस्ट करता है, देखो वाटर अगर ज्यादा रहेगा तो वो हिसाब से काम करेगा, कम रहेगा तो फिर भी काम करेगा। लेकिन वाटर इससे भी ज्यादा कम हो गया, मतलब पानी का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो गया, देन द फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी ग्लूकोज देखते हैं। व्हाट इज ग्लूकोज नाउ? इट इज लाइक द केमिकल फॉर्मूला आपने को पता ही है, C6H12O6। सो इट हैज 6 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके साथ इट्स गोइंग टू हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अगेन 6 एंड 12 H2O, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से ये पूरा इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लूकोज का। So it will have carbon 1 will have attachment with the hydrogen and oxygen. The 6th carbon will have attachment with the hydrogen and hydroxyl OH group. Okay, yes, correct, Sanika. So again we are going to have OH group which is attached to the 3rd carbon. सब जगह पे you can see here. So OH will be attached to carbon number 2, carbon number 3, carbon 4, 5 and 6, right? And then we are going to have this entire chemical reaction. Whereas ये ग्लूकोज का टिपिकल केमिकल फॉर्मूला है, या फिर व्हाट यू कैन, यस यस यू हैव टू राइट दिस, ये सब आपको लिखना है। दिस इज केमिकल नेचर ऑफ द ग्लूकोज। ऑन दिस वन इज अगेन ऑफ द फ्रुक्टोज। लेकिन फ्रुक्टोज में अगर आप देखोगे ना तो थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर सेम, सिर्फ कार्बन 1 पे जो अटैचमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, right? So here OH group will be attached to carbon number 1 in fructose, then carbon number 3, carbon number 4, 5 and 6. Whereas ये सब लर्न करना पड़ेगा। हाँ ये सब लर्न करना पड़ेगा। These are all known as, yes, Fischer diagram बोलते हैं उसको। Very good. So these are all, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो नहीं पूछना। स्ट्रक्चर पूछते नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर निकाल के ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ऐसा नहीं आता है, लेकिन पूछ सकते हैं ना इसके ऊपर क्वेश्चंस। इसके लिए आपको ये आना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर्स। Okay, so this Yes. one is known as polyhydroxy nature of the carbohydrates, or of the carbohydrates to begin with. Polyhydroxy इसके लिए, because if you can see here in glucose, carbon 1 will have attachment with the aldehyde group. So we call this as aldehyde group, having attachment with the O and H separately. So this is known as the aldehyde group. Whereas fructose का देखोगे तो यहाँ पे we are going to have ketone group as an attachment. तो थोड़ा सा फर्क है। सो इधर इसके लिए उसको बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी। सो इधर ग्लूकोज इधर इज गोइंग टू बी अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप।
ठीक है, तो दोनों मिलकर बन जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। पहले इसको खत्म करो, फिर इसका कॉन्सेप्ट और आगे आएगा, वो मैं बोलता हूं। यस, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, करेक्ट आदित्य। पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं उसको, पॉली मतलब मेनी। तो पॉली इसके लिए है अमन, बिकॉज इट हैज अल्डिहाइड ग्रुप आल्सो एंड कीटोन ग्रुप आल्सो, इसके लिए उसको बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना उसमें अटैच्ड, बुशरा, इसके लिए उसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोला गया। तो कौन कौन सा है, तो उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है और एक आता है कीटोन ग्रुप। पूजा मैडम की एंट्री हो गई है हमारे क्लास में। पूजा मैडम आपका अटेंडेंस लेना चाहती है। पूजा मैडम को अलाउ टू टॉक क्यों कर रहा हूं मैं? रुको पूजा, तुझे प्रमोट करता हूं मैं। नाही नाही, ते त्यांचं ना, आपलं नाही का द्यायचा आहे तो चेक परत. अरे आपला चेक आहे, मीर सरांचं, निलेश सरांचीच आहे. Thank you, sir. या नो प्रॉब्लम. ओके, सो नाउ अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आना है, ठीक है. नाउ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कंटेनिंग ईदर अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ठीक है. सो क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आता है, तो यू शुड नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर ईदर गोइंग टू बी अ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप और दे आर गोइंग टू बी कीटोन ग्रुप. तो पॉलीहाइड्रोक्सी का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, दैट इज ग्लूकोज. कीटोन का एग्जांपल दिखाया, दैट इज फ्रुक्टोज. अच्छा, ये चैप्टर है ना आप लोगों को केमिस्ट्री में भी है, तो आपके केमिस्ट्री के सर है ना, वो केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो उस टाइम पे और ज्यादा अच्छे से आपको समझेगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू मेनी केमिकल रिएक्शंस बिकॉज दे आर नॉट नेसेसरी हियर. यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है. ओके, I don't know whether it is in 12th or 11th. I think it is in 11th only. देख लो. So this is how we can define carbohydrates according to chemistry. Okay, chemical reactions या फिर chemical composition के हिसाब से we can define carbohydrates as the polyhydroxy compounds containing either aldehyde group or ketone group. हो गया लिख के सबका ये? Yeah, it's in, I think it is in 11th only. पढ़ाएंगे आपको सर. Yeah, ठीक है. So this is the empirical formula. I have no need to explain what is empirical formula. It is CnH2ON. ठीक है. So this is known as the empirical formula for the carbohydrates. So this is also important. Bio में भी important रहेगा. Okay. Proportion में आएगा फिर ये सब, उसी प्रोपोर्शन में आएगा. सो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? ये दिया है उन्होंने एक्सप्लेनेशन, अ फार्मूला दैट शोज द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. तो टिपिकल एक रेशियो आएगा. सो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CnH2ON, जिसमें n विल बी लाइक n इज एनी इंटीजर, ठीक है. इट कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 3, इस तरीके से होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6,
and ratio of hydrogen is always going to be, hydrogen and oxygen will always be 2:1. तो आप देखो C6H12O6, H12 and O6 मतलब O एक है तो H12 मतलब वो डबल हो गया, सो द रेशियो इज 2:1. तो ये एक टिपिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड. अभी इसमें भी वेरिएशंस आएंगे, इसमें भी एक्सेप्शंस आएंगे. ओके, फ्यू ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर दैट आई विल टेल यू, बट आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. ये केमिस्ट्री में आपको है और आपका शायद हो चुका होगा, आई डोंट नो. डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it's done na. Gaurav is saying it is done. Yes, correct, it's done in the chemistry. क्या चाहिए, कौन सा श्रेया लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा आपको? श्रेया मिस मैडम को लास्ट स्लाइड चाहिए. दिस वन? Yes, sir. चलो हो गया. हाँ हाँ अमन, फिनिश्ड. Done, sir. आदित्य समझा नहीं मुझे आपका क्वेश्चन. बायोकेमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री और यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में इट इज अंडर द नेम एज बायोमोलिक्यूल्स, बट लाइक अ बायोकेमिस्ट्री ओनली, वैसा ही है वो, क्योंकि शायद बायोकेमिस्ट्री में भी आप लोग यही पढ़ोगे. ठीक है, हो गया ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं अभी कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स. जैसे मैंने बताया ना एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसको भी कुछ एक्सेप्शंस है. जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आता है C3H6O3, तो इट डजंट फॉलो दैट रेशियो. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो फॉलो नहीं, ये नहीं कर रहा है. ठीक है, रेशियो तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अगेन 3 कार्बन कंपाउंड, सो they do not yet are not the carbohydrates, they are following this formula like CN. जैसे यहाँ पे if you see, this is oxygen 3 molecule, hydrogen 6 molecule, carbon 3 molecule. Okay, so basically this is also following 2:1 का ratio, but it's not a type of carbohydrate. Formaldehyde CH2O, is it following this? कार्बन कितना है? 1 है. So again वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, get in this. So there are the few exceptions which are there for the typical empirical formula of the carbohydrates. Lactic acid is not a type of carbohydrate, still has the formula similar to carbohydrates. Or formaldehyde mein it has only 1 carbon compound, right? Now let us understand the classification of carbohydrates. What is the classification? ये आप लोगों को पता है? Monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Very good. So first one is the monosaccharide, second one is the disaccharide, third one is the polysaccharide. तो हम लोगों को अभी एक एक करके पढ़ना है. We have to start with monosaccharides, then disaccharides, then polysaccharides. कौन सा आलोक चाहिए आपको? हाँ ये लास्ट स्लाइड ये ले लो. Finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. So this is the typical classification. We'll start with the first one, that is the monosaccharide. Monosaccharide का मतलब क्या आता है? The sugars which are made up of only one molecule. So mono मतलब one, saccharide मतलब sugar. ठीक है, so the molecule which is made up of only one sugar molecule is known as the monosaccharide. ठीक है, so thus monosaccharides have a single sugar unit. एक ही यूनिट रहता है, जैसे ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है. So that is a typical example. Now monosaccharides are basically going to be non-hydroxyl in nature. ठीक है, non-hydrolyzable, not hydroxyl, non-hydrolyzable in nature. मतलब इनका further breakdown नहीं हो सकता है. So that is why they are considered as the simplest form, because they cannot further be hydrolyzed, they cannot further be broken down. ठीक है, इसके आगे इसका सिंपल फॉर्म नहीं आएगा. दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन हाइड्रोलाइजेबल. ठीक है, हाइड्रोलाइज हो सकते नहीं है. ओके चलो आगे बढ़े.
Selvi, hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what are the characteristics of monosaccharides? Monosaccharides के क्या क्या properties या characteristics आते हैं? सबसे पहला तो they are crystalline in nature, amorphous नहीं है, powdery नहीं है, crystalline होते हैं, तो छोटे छोटे particles इसके आपको feel होंगे या दिखेंगे, ठीक है? Naturally, they are going to be sweet to test. Testing उसका भी sweet रहेगा, and plus basically they are soluble in water. Yes, correct, Bhakti. Okay, so they are all soluble in water. Right, so can get dissolved easily in the water. So these are the main properties of the monosaccharides. They are crystalline. अच्छा, disaccharides देखोगे तो they are less sweeter and polysaccharides are usually not that sweet. Right, ऐसा रहता है. Yes, correct, Sophia. Fructose, glucose, galactose. Okay, so these are the characteristics or properties of the monosaccharides. Now, their classification. What is the classification of the monosaccharides? So, on the basis of functional group, we have the first one known as the aldose, and the second one is known as the ketose. जो अभी हम लोगों ने देखा था, aldehyde and ketone. ठीक है? So, basically, the one which contains the aldehyde group will be monosaccharide. So this is a one type of monosaccharide, and the second one, जैसे aldehyde group मतलब क्या? This chemical formula or chemical structure of the aldehyde group. ठीक है? C double bond O and single bond H. So that's called as the aldehyde group. Yes, correct. And then ketones. Ketones में क्या आएगा? जैसे for example, they are basically ketone groups. So they will be something like this. ठीक है? So this is known as the ketone group. So इधर यहाँ पे कार्बन अटैच रहेगा या फिर हाइड्रोजन अटैच रहेगा, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केमिकल. सो जिसका भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, राइट? सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. वन इज नोन एज द aldose and the other one is known as ketose. Aldose is made up of, why aldose? Because it has one aldehyde group. Why ketose? Because it has one ketone group. Okay, चलो next. The next important classification, ये examples है देखो, glucose and xylose is an example of aldose, and similarly fructose and ribulose is an example of ketose. ठीक है, तो ये examples important है, इसको अच्छे से लिख के रखो, इसके ऊपर MCQs आते हैं. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये वाला? यस सर. डन. एग्जांपल्स लिख लिए? Sir, please show the last slide. अरे कौन सा लास्ट स्लाइड? कौन सा रे बेटा? So the aldehyde arrangement. ये वाला कि ये? Aldehyde arrangement. This one? Yes. Thank you so much. Done. चल. बाप रे, इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड मोनोसैकेराइड्स का वो कहां से ली? क्या चाहिए था अमन उसमें? इतने स्लाइड दिखाओ कर रहे हो ना तुम लोग. ये सर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो लिखने को. हाँ, ये वाला अमन. डन सर. हो गया क्या अमन? यस सर. अच्छा तूने बोला, सॉरी. तेरी आवाज अलग क्यों आ रही है आज? चलो, on the basis of number of carbon, again there is classification of the monosaccharides. One is known as the triose, having 3 carbon compound or 3 carbon molecules or 3 carbon atoms, like for example glyceraldehyde. So we call this as triose. Then we have tetrose, having 4 carbon compound. Example is erythrose. ठीक है. Then we have, अच्छा ये लिख लो बाबा, एक काम कर दे, पहले ये सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक स्लाइड दिखाता हूं मैं आप लोगों को. Then we have pentose,
which has 5 carbon compound. जैसे फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज. डीऑक्सीराइबोज से क्या बनता है? डीएनए. राइबोज से क्या बनता है? आरएनए. ओके, वेरी गुड. ठीक है. एंड देन वी हैव हेक्सोज which is a 6 carbon compound, like for example glucose and fructose. ठीक है. So this is 6 carbon compound. And then we have the last most important is the heptose, which is a 7 carbon compound. That is example of this is pseudoheptulose. So this is called as a pseudoheptulose. डायग्राम बनाओ के रखोगे अमन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. कभी कभी देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, इसके डिटेल्स नहीं आएंगे, ये कैसे बना, कहां से बना, ये नहीं आएगा. So either they will give you different diagrams, मतलब chemical you can say formulas or chemical diagrams, and they will ask you to identify कि ये क्या है. Clear? ठीक है. तो ये सब important है. Now I am going backwards. Now start writing it down. ये लो, पहले ये लिखो. Done, sir. हो गया ये लिख के. चलो, next one is the last one. This one is the heptose, which is a 7 carbon compound. Pseudoheptose is कौन सा last slide? The last slides. I want to draw the structure. हाँ. Yes.
सर येस पहिल्या वाल्या डायग्राम मध्ये ते एका एका म्हणजे पेंटोच्या डायग्राम मध्ये एका डायग्राम मध्ये एच रेड कलरनी आणि दुसऱ्यात OH रेड कलरनी का बरं दाखवलं? दैट्स द चेंज ना बेटा, ये चेंज हुआ है ना इधर, एंड दैट इज हाउ ये बन गया डी डी ऑक्सीराइबोज और ये बन गया राइबोज। यस सर। समझा? हाँ, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आरएनए और इससे बनेगा डीएनए। So that is why DNA is called as deoxyribonucleic acid and RNA is known as ribonucleic acid. Excuse me, हाँ, sir, in the second diagram of hexose, there are only 5 carbons in the main carbon chain. इधर Yes, sir. In fructose, there are only 5 carbons. इधर है ना, और इधर एक है ना साइड में, Right now, sir. Okay. साइड में है ना भाई लोग और बहन लोग उनकी। Okay, sir. हाँ, वो चलता नहीं है। यहाँ से एक पेपर और एक पेन चाहिए आते हैं। यहाँ नीचे पेपर है और एक पेन। सुनिए, एक मिनट हो गया बच्चों? हेलो, Yes, sir. हाँ, चलो ये हेप्टोज का ले लो। 7 कार्बन कंपाउंड pseudoheptilose is an example of this. हाँ सर, what sir? सर नाम लिखना था सर बस। किसका नाम लिखना था? लिख ले, तेरा ही नाम लिख ले तू। सर वो हेक्सोसिस का। हाँ ये ले, हंस मत। You are one of the hexoses. हो गया? यस सर। आदित्य हो गया? Yes, sir. चलो ये कर लो फटाफट, इसको लिखो एंड देन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes. It's 11:35 now. We will meet at 11:45. अनन्या बैडमिंटन खेल के आ जल्दी। Recording in progress. चलो ये हो गया हमारे 7 different types. Okay. Now once again इसको थोड़ा सा अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो मोनोसैकेराइड सबसे पहला, जैसे यू नो, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे हैव, दैट इज अल्डोज एंड कीटोज, aldehyde and ketones. So that's why this is a functional group. Okay. And then we have the further classification. अच्छा, aldose का example दिया हुआ देखो, glucose and xylose, fructose and ribose. Okay, fructose and ribose. Then we have the next one that is based on the number of carbon atoms. So we have triose, like for example glyceraldehyde. Then we are going to have tetrose, which is erythrose. Example is erythrose, having 4 carbon compound. 5 carbon compound will be known as the pentose. Example is ribose and deoxyribose. 6 carbon compound will be called as hexose, which is glucose and fructose is an example of this. And the 7 carbon compound is heptose, which is pseudoheptilose, is the example of this 7 carbon compound. So this is a typical classification of the monosaccharides, right? आप लोगों को बस ये बेसिक्स है, इसके डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे बायो में, बायोमोलिक्यूल में नहीं है. If at all it will be there, it will be in your chemistry. So chemistry का chapter will definitely help you to understand all these things in details. So we are not going to study that. ठीक है? मोनोसैकेराइड के बाद the next comes is the disaccharides. डाइसैकेराइड का मतलब क्या आता है? डाई का मतलब आता है 2 and saccharide का मतलब आता है sugar. So meaning this particular compound is, अभी आर्या लास्ट स्लाइड सेम है बेटा, मैंने सिर्फ ये किया ना. So don't write. आप ऑलरेडी लिख चुके हो उसको. Don't rewrite again. This is just classification in at a glance. Okay.
चलो, so meaning it is made up of 2 sugar units. अच्छा, 2 sugar unit है, मतलब 2 sugar unit के बीच में रहेगा एक bond. So there has to be a bond between the 2 sugar molecules, 2 glucose molecules, or whatever the combination is. ठीक है? So as you can see here, we have one sugar molecule and another sugar molecule, and then there is a bond between them. So disaccharides are the hydrolyzable compounds. Why hydrolyzable? Because they are made up of 2 sugar compounds. So this bond can break and will convert this disaccharide into a monosaccharide. That is why it is a type of hydrolyzable compound. So can get hydrolyzed easily. Galactose is an example. Umesh, what is galactose? कौन बताएगा? Galactose क्या होता है? Monosaccharide. Very good. It's a type of monosaccharide. Fantastic. Hexose, right? Correct, Gaurav. Umesh, समझा आपको? So galactose is also an example of monosaccharide. तो monosaccharide में 3 आते हैं ना, glucose, fructose and galactose. Okay. चलो, now this one is hydrolyzable. कौन? Disaccharide. So disaccharides are hydrolyzable, can be broken into 2 simpler forms. ठीक है? Now, what are the properties of disaccharides? क्या होते हैं properties? जैसे सबसे पहला तो it's going to be crystalline, but पहला property था same monosaccharide का, it is crystalline. Same, this is also crystalline in nature. Monosaccharide is sweet to taste. It is comparatively sweeter in taste. May not be as sweet as monosaccharides. Okay, it may not be as sweet as that monosaccharide, but definitely is going to be sweeter in taste, and of course soluble in water. ठीक है, so this is also soluble. So जितना जो properties आपने monosaccharides का देखा, same properties are there for the disaccharide. कौन सा last slide चाहिए? This one. Done? अमूली ने हाथ ऊपर किया है. अरे माइक चालू है किसी का? बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है. Sir, what is hydrolyzable? Hydrolyzed मतलब broken down. Hydrolysis. Okay. हाँ. तो जैसे monosaccharide is a basic compound ना, so that further cannot be broken down into more simpler forms. So that is non-hydrolyzable. This one is hydrolyzable. ठीक है? So these are the properties of, and these are the properties of the disaccharide. इसको लिख लो. Done? Yes, sir. Done, sir. हाँ. एक मिनट. हाँ, okay. So properties. Now let us see the further. Now how disaccharides are formed? कैसे बनते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि it is basically made up of 2 monosaccharides. लेकिन 2 monosaccharides के बीच में होना चाहिए एक bond. ठीक है? So say for example we have this alpha glucose which is now combining with another alpha glucose molecule. So there will be a bond which is formed between them. तो कैसे बनेगा? So here a definite bond is formed. So water here will be released out. While the disaccharides are getting formed, when one alpha glucose is combining with another alpha glucose, it releases some amount of water and then it forms a bond here. क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे OH OH है,
बराबर है, तो उसमें से H2O निकल आएगा एंड ओनली वन O will remain here, and this is going to form a bond here that is known as glycosidic bond. I hope We you are have to draw this. yes, OH plus OH ऐसा करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा that is going to be H2O plus O, and then this O will combine with this one carbon, first carbon of one molecule and fourth carbon of another molecule like this. So as you can see here, so it's going to form a bond, and this bond is known as the glycosidic bond. और वही glycosidic bond फिर से break होगा. Yes, you have to draw all this, huh? And the same glycosidic bond will break to give rise to glucose, 2 molecules of glucose, alpha glucose. Yes, they are always held together by a covalent bond. That covalent bond is the glycosidic bond. प्लीज इसको अच्छे से ड्रॉ करो, हाँ? ये सब आना चाहिए तुम लोगों को, ध्यान में आना चाहिए सब. So disaccharides will be formed, correct Khushi? Disaccharides will be formed by joining of 2 monosaccharides. बराबर है, वही होगा ना? And when more than 2, मतलब multiple monosaccharides when they join together, they are going to form polysaccharides. ऐसा है. हो गया सबका ये? नो सर. हाँ हाँ. आदिति का हो गया. Okay. Arya done, Divya done, Atharva done. Dance where? Finished? Sir, are the both glucose have different chemical formula? Yeah. See, टाइप ऑफ ग्लूकोज होते हैं ना, अल्फा ग्लूकोज रहता है, बीटा ग्लूकोज रहता है, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स. अभी यहाँ पे हम लोगों ने दोनों सेम किया है क्योंकि अल्फा ग्लूकोज ही है इसके लिए. सर हम्म. जिथे स्टार्टिंग होती ना दोन्ही एक अल्फा ग्लुकोजच्या एका साइडला 1 आणि 4 असं का लिहिलेलं आहे? दैट्स अ कार्बन मॉलिक्यूल ना, अटैचमेंट है, चेन बनेगा उसका बाद में. हाँ म्हणजे जसं अटैचमेंट. आता हाँ, तो वो ये 4th कार्बन है जो दूसरे वाले, तो ये वाला 4th कार्बन है ना, हाँ तो ये म्हणजे यहाँ आता पे और एक मॉलिक्यूल रहेगा तो वो 1 वाले को अटैच रहेगा. ये अगर 1 है तो ये 4th वाले को अटैच रहेगा, लाइक दिस. सो इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द चेन. यस सर. ओके. हाँ. Yes, both glucose have left their OH and have formed glycine.
चलो हो गया ये लिख के. Yes, water will be released because it's a chemical reaction, no? So byproduct has to be released. So यहाँ पे water release हो जाएगा. तो ये chemical reaction लिखा है देखो मैंने. And this O is going to form this glycosidic bond. तो ये diagram में भी दिया है देखो. H2O is getting released. I hope everyone has done this. Now, thus a disaccharide is formed when two monosaccharides lose a water molecule by a process known as condensation. Okay, जब condensation होता है तो they will lose the water molecule, and when one water molecule is lost from two monosaccharides, they will combine to form a disaccharide. कल अगर ऑफलाइन रहेगा तो उसको क्या करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. मैसेज आएगा आपको ग्रुप पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. फिनिश्ड? डन सर. यस ऑफ कोर्स प्रिया. अभी अगर ये वापस सपोज ये डाइसैकराइड बन गया, या इफ दिस डाइसैकराइड इज फॉर्म्ड हियर, तो नेचुरली अगर इसको मुझे स्प्लिट करना है तो व्हाट आई विल रिक्वायर? वाटर. तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन. ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज द हाइड्रेशन. नो नो अमूल्य, आई एम नॉट इन औरंगाबाद. सर हाँ तुम्ही जी मागच्या स्लाइड मध्ये रिएक्शन लिहून दिली होती त्यालाच कंडेन्सेशन म्हणता ना? हाँ करेक्ट. शाम को लेक्चर है औरंगाबाद और वुडरिच के लिए सिर्फ. हाँ सर शाम को कौन सा टॉपिक है? दिलंय ना. स्ट्रक्चर ऑर्गेनायझेशन चालू आहे ना आपलं. वी हैव टू फिनिश देन स्टार्ट विथ कॉकरोच. कहाँ हो अब सर? अभी आप सर? मैं नासिक में हूँ अभी ईशानी. खुशी समझा नहीं. Why are you saying this? Why disaccharides are important? Meaning what? What are the examples of disaccharides? Lactose. Sucrose, maltose. Fructose. Sucrose. Sucrose. Lactose, sucrose and Maltose. maltose. Very good. So lactose, sucrose and maltose. ठीक है. सो ये 3 कंपाउंड्स रहेंगे. तो नेचुरली उनको बनाने के लिए, जैसे लैक्टोज इज व्हाट? मिल्क शुगर. सुक्रोज इज व्हाट? केन शुगर. माल्टोज इज माल्ट शुगर. तो वही है. खुशी? Sir, so ठीक here, है. which is there in the on the slide, 2 glucose molecules are combining. So the one that is given down will be maltose only. यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली फिर ये माल्टोज में कन्वर्ट हो गया ना बेटा. Yes. ग्लूकोज विल कंबाइन टू फॉर्म माल्टोज. ऐसा ही है. लेकिन माल्टोज का अलग से स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट इसमें आएगा. पॉलिस नेक्स्ट इसमें आएगा. Okay, sir. हाँ ठीक है. ये नेक्स्ट स्लाइड हाइड्रेशन वाला. ये हाइड्रेशन वाला मत लिखो. हाँ ये मैंने खुशी को समझाने के लिए बोला था. फिनिश्ड? चल. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? ये दिए हुए एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और रादर चलो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज विल गिव राइज टू सुक्रोज. Sucrose. ठीक है. मस्त दोन आहे. थैंक यू. Okay, so glucose plus fructose will give rise to sucrose. Glucose plus galactose will give rise to lactose, and glucose plus glucose will give rise to maltose. Correct?
अरे लूज वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या, द वाटर विल बी लॉस्ट जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट रहेगा, तो यहाँ पे ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जब केमिकल रिएक्शन होता है, सो दे स्टार्ट रिलीजिंग वाटर। तो इसका मतलब ये होता है जब इनका कंडेंसेशन होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का जब कंडेंसेशन होगा तो उससे बनेगा माल्टोज। सो दैट इज हाउ डाइसैकराइड्स आर फॉर्म, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड अगर बनाना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है, तो वहां पे फिर सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स वैसे ही रहने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, सो इट बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। Yes, water will be like a byproduct of the main and the main product will be like maltose, ठीक है। So ये कुछ examples है, these are the examples of disaccharides. Then next comes is the polysaccharides. Poly का मतलब क्या आता है, many, more than two or many, and saccharide का मतलब आता है sugar. So the polysaccharides are the one which have many sugar units. बहुत सारे sugar units मिलकर बनता है polysaccharide. Naturally it is formed by many sugar units, so they can easily split. तो ये break भी हो सकते हैं. Now here polysaccharides are also hydrolyzable. तो इसको भी ब्रेक करके polysaccharides will break down or get hydrolyzed to form disaccharides. Disaccharides will hydrolyze to form monosaccharides. So eventually polysaccharides can also get converted into monosaccharide. जैसे स्टार्च होता है, बराबर है। हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च बेसिकली वी आर गोइंग टू ईट, एंड आवर बॉडी, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन विल कन्वर्ट दिस स्टार्च इनटू ग्लूकोज, बराबर है। तो स्टार्च इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड जो बनाएगा ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सेम सिमिलर जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, दिस इज द जनरल फॉर्मूला C6H12O5N, where N is equal to number of monosaccharide links. So as I said, it can be 2 or more than 3 or more than 3. So they are basically a very long chain, बहुत बड़ा चेन बन जाता है इसका, okay. So they are obtained by condensation of large number of monosaccharides. तो बहुत सारे monosaccharides मिलकर ये बनता है, so it's like 1 2 3 4 5 N. So N is like infinite भी हो सकता है नंबर, ठीक है। So इससे बनेगा आपका पॉलीसैकेराइड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो, अमन को चाहिए लास्ट स्लाइड, दिस वन। फिनिश्ड अमन? क्या हो गया अमन अचानक थैंक यू सर जा रहा है तू? फिनिश्ड? नो सर। अच्छा स्लाइड दिखाने के लिए, मुझे लगा तू जा रहा है। डन? Done, sir. सर ऐसे कैसे मैं आपको छोड़ के जाऊंगा? छोड़ के की क्या, छोड़ के लिखने का? चलो ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, नाउ दे आर एमॉर्फस इन नेचर, मतलब पाउडरी। पॉलीसैकेराइड्स आर गोइंग टू बी पाउडरी, दे आर ऑल टेस्टलेस, देयर इज नो टेस्ट। So this one is the testless, disaccharide is sweeter and monosaccharides are sweet in taste, ठीक है। तो धीरे धीरे टेस्ट बढ़ते जाता है, and are always insoluble or may be slightly soluble in water, मतलब ये dissolve होता नहीं है, ठीक है। So these are the three important properties of polysaccharides which are exactly opposite to what we have learned for mono and di. हो गया? बायो सर।
बाकी के लोग हाँ चलो टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स देख लो क्या क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑल दीज अल्फा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स. So they all have combined together. So same type of monosaccharides when they combine together, sir. Chitin. Yeah, Khushi. Chitin is also a type of polysaccharide. ठीक है. So when the same type of monosaccharides when they combine together, they will give rise to a homopolysaccharide. Homo का मीनिंग आता है सेम. ये डायग्राम मत लिखो, सिर्फ सेंटेंस लिखो, ड्रॉ मत करना कुछ भी. Sanika was disconnected. Sanika क्या हुआ बेटा? Could you please show last slide? अच्छा. Sir, I was disconnected. Okay. ये वाला? Sir, which slide was there before this? This one. हाँ, this I have written. Next one. तो ये है properties है. Yes, sir. 1 minute. ये डन. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑफ मेनी. ओके, मेनी monosaccharides which are of same type. Okay, monosaccharides of the same type, when they combine together, they are going to form a product. Okay, and the product which is formed here is known as homopolysaccharide. Homo का meaning आता है same. ठीक है. So either you are going to have a typical molecule which is formed by same monosaccharides, so it is known as the homopolysaccharide. ये समझ में आ रहा है? इसके एग्जांपल्स हम लोग बाद में देखते हैं. इशिता, पहले ये समझ लो. क्या हुआ अमन? यस उमेश. वाटर मॉलिक्यूल उतना रिलीज हो जाएगा जितना ग्लूकोज मोनोसैकेराइड अल्फा ग्लूकोज रहेगा. Yeah. Now, what are the examples of homosaccharides? जैसे for example cellulose. Cellulose is a homopolysaccharide. For example starch is a homopolysaccharide. For example glycogen found in the liver. ये पता नहीं ऐसा क्यों निकाला है, लेकिन liver में होता है ना glycogen. Glucose is stored in the form of glycogen. Okay, so that is also a type of homopolysaccharide. हाथ तो ऊपर कर अमन, तो मैं करूंगा तुझे माइक दूंगा. So सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन डायग्राम ड्रॉ करनी है? नहीं, ये मेरे ख्याल से बुक में दिया हुआ है, एक बार चेक कर लो. आई डोंट थिंक यू शुड ड्रॉ दिस, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा फिर. लंबा वाला है बहुत ये. These are the examples. So examples लिख के रखो. Examples of homopolysaccharides is cellulose, starch and glycogen. Okay. Next. Now we have one more type of polysaccharide. जहाँ पे as you can see here, there is one compound called as the glucuronic acid, which is number is like N, plus when it combines with N-acetyl glucosamine, then this will give rise to a different type of polysaccharide, but it is formed by two different types of monosaccharides. So different types of monosaccharides, when they combine together, they will give rise to a compound known as heteropolysaccharide. Okay, तो पहले सिर्फ इतना ही लिख के रखो कि when different types of monosaccharides they combine together, they will give rise to heteropolysaccharide. फिर heteropolysaccharide का examples देखते हैं हम लोग. Okay, now what are the examples? जैसे अच्छा, अभी इसमें मेरे ख्याल से यही एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग. पहले अभी ये थोड़ा सा देख लो. व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अभी ये क्या काम करते हैं, पहले ये अच्छे से कर लो. हाँ, डू इट प्रॉपरली. डोंट ड्रॉ द डायग्राम बट राइट इट डाउन प्रॉपरली. हो गया?
आई सर लेक्चर डन नहीं चालू है। अच्छा लेक्चर चालू है। सर अंदर आ जाइए डन। Yes. अच्छा, अभी इसमें ना यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ मे बी हाइलुरोनिक एसिड। Okay, this is an example of the polysaccharide, that is heteropolysaccharide. ठीक है, so this is also type of, या फिर एक compound आता है that is known as heparin. So this is a type of polysaccharide. Okay, heteropolysaccharide जिसको हम लोग बोलते हैं. Hyaluronic acid is basically is a compound of अतन जी तो दरवाजा लाते हैं. Hyaluronic acid is basically a compound found commonly in the ovum. The outer lining or covering of the ovum will be attached to each other, will stick together with the help of hyaluronic acid. तो ovum के ऊपर का ये layer होता है, that's hyaluronic acid. So that is also type of heteropolysaccharide. Heparin is a type of anticoagulant substance, so that is also type of hyaluronic acid. Sorry, a type of heteropolysaccharide. ठीक है, चलो, what are the properties? सर heparin शायद लीच, हाँ लीच में भी होता है, correct. heparin हमारे बॉडी में भी होता है. What is the role of carbohydrates? क्या काम करते हैं? तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. They are the primary source of energy, ना? So they provides energy for the metabolism. So that's why we call that as primary or the rich source of energy. Primary source of energy, not the rich but primary source. ठीक है? And glucose is main substrate for the compound, main substrate for the formation of ATP. That is adenosine triphosphate, मतलब energy production. ठीक है? Yes, it is considered as the cheapest source of energy and main source of energy. Rich source of energy is the fat. Okay, so this is how we see the importance of the glucose or carbohydrates, right? तो I think यहाँ पे अपना carbohydrates अभी खत्म हो जाता है. अभी कुछ hard facts है. So in mammals, lactose present in milk provides energy to the babies. Sir, last slide का slide. Sir, last slide, please. ये है ना, यही ना? Second last. इससे पहले वाला ले लो. फिनिश. लेकिन ये पता है ना आप लोगों को, इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है word to word? You all know this. We have studied this in digestion also, digestive system. Hello. What, Bushra? Sir, it provides what? Bushra. Are you Bushra? Nothing. पुराना मैसेज अब भी तो डाला 12:25 को और पुराना बोल रही है. हाँ, हाइलुरोनिक एसिड स्किन केयर के लिए भी काम में आता है, आई फ्लूइड में भी होता है, ओवम का आउटर लाइनिंग होता है वहां पे भी रहेगा. सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ carbohydrate. And which type of carbohydrate? It's a heteropolysaccharide. Why hetero? Because it is made up of two different or more than different types of monosaccharides. ठीक है, चलो. Glucose is primary source of energy which is produced in the form of ATP. हाँ, new batch का नहीं हुआ, I know. Yes, collection of many monosaccharides is basically collection of any particular molecule. When they collect together, we call that as polymerization. तो glucose का भी वैसा ही है ना, starch बनता है. देखो, starch is synthesized with the help of polymerization. Rather the chemical reaction is known as the polymerization. Fine. Now, in mammals, lactose again present in the milk, which also provides energy to the babies. तो babies को energy lactose से ही मिलता है. ठीक है. Now, this is another important part. Which is polysaccharides which serve as the structural component of the cell. कौन-कौन से होते हैं polysaccharides जो structural component करके काम में आते हैं? You know this. Cell में भी हमने पढ़ा था. जैसे for example we have
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बायलिपिड लेयर विद द इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन वी हैव सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज, व्हिच इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है. So इससे these are the structures which are helpful for providing the structural stability to the cell. Hirudin, I think, is not a type of heteropolysaccharide. I need to confirm this, Aditya. सर लास्ट स्लाइड. अभी कौन सा लास्ट स्लाइड रे? ये इसमें क्या ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. या lactose dash provides energy to the babies. खत्म. Because lactose is also a type of sugar. Done? बायो सर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स अभी हो जाता है खत्म. एंड वी नीड टू स्टार्ट विद द प्रोटीन्स. लेकिन अभी प्रोटीन्स में आज अभी नहीं चालू करूंगा. प्रोटीन्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो वेडनेसडे को होगा हमारा. ओके, सो जिन लोगों का लिख के हो गया दे कैन लीव द मीटिंग. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू, सी यू. Thank you, sir. Yes, Aurangabad and Woodridge we have to meet in the evening 4 to 6. Bye, sir. Thank you. Yes, मिलते Yes, sir. हैं. Bye, sir. Boy. मिलते हैं सर. So हम क्या हुआ? सर मला ना एक प्रश्न होता. मध कशापासून बनलेलं असतं? मध कशापासून बनलेलं असतं म्हणजे ग्लुकोज. सर मग आपल्याला माहिती आहे की मध ग्लुकोज पासून बनतं, मग आपण त्याला लॅबोरेटरी मध्ये का नाही प्रोड्यूस करू शकत? करतात ना. नाही ना सर, अजूनपर्यंत ब्लड आणि हनी आर्टिफिशियली मेड नाही करता आले. सिंथेटिक आहे ना, म्हणून तर ते मारामारी असते ना की ओरिजिनल आहे की डुप्लिकेट आहे. नाही सर, ते डुप्लिकेट बनवतं, पण जे हनी बीज बनवतात सेम टू सेम तसं का नाही? तसं नाही बनवताय बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. आणि हनी कसं असतं ना, हनी बीज आर गोइंग टू सिक्रीट सर्टन केमिकल एजंट, सर्टन एन्झाइम्स which are useful for immune system in our body. I don't want to name them, but those cannot be synthesized in the lab. इसके लिए आप typical वैसा का वैसा नहीं बना सकते हो, but you can make it. आणि सर ब्लड पण का नाही बनवतात मग? कसं बनवणार ब्लड मला सांग बरं. What are the components of the blood? हिमोग्लोबिन और आरबीसी. और आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट. लेकिन तेरे बॉडी का प्रोटीन्स और मेरे बॉडी का प्रोटीन्स अलग रहेगा ना. हेलो. बट सर जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव जैसे ग्लोबुलिन होता है, अल्ब्यूमिन होता है, लेकिन the kind of proteins which are made by your body are dependent on your genes, DNA. मेरे बॉडी में जो प्रोटीन्स बनता है वो मेरे डीएनए का रहेगा, तो नेचुरली वो नेचर थोड़ा सा फर्क रहेगा ना उसमें. दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. करेक्ट. सो स्लाइड वेरिएशन विल ऑलवेज बी देयर. तो हर एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ी ना ब्लड बना सकते हो. नाही सर, असं नाही म्हणत की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल साठी वेगळं ब्लड बनवायचं, पण ब्लड का नाही बनव, म्हणजे असं एकच ब्लड का बनवता येतं का? नहीं बनता है ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज इट वोंट बी ऑफ एनी यूज. बना सकते हैं लेकिन उसको करोगे क्या आप बना के? इफ इट कैनॉट बी यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड फॉर एनी पर्पस, देन व्हाई टू मेक इट? आपण बनवू शकतो, बरोबर? बनवू शकतो. येस वी कॅन मेक. ब्लड बनवायला देर आर लॉट ऑफ दिस फॅक्टर्स ऑल्सो. क्लॉटिंग फॅक्टर्स आर ऑल्सो देयर. डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर. लिपिड्स आर देयर. ब्लड म्हणजे एवढं सोपं नाही आहे रे. म्हणजे जे तुम्हाला माहिती आहे ना, इट इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट द ब्लड इज. बाकी का पता ही नहीं है. जो आप मेडिकल में जाओगे तो पता चलेगा. येस सर. ठीक है. हाँ सर, ते वाचलं होतं ना मी, भरपूर जणांना विचारलं, शाळेच्या शिक्षकांना विचारलं, कोणालाच नाही सांगता. हो नाही, कारण इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेकॅनिझम बिकॉज बेसिकली and why? Because it is genetically oriented. That is why. So genes are going to control mechanism of synthesis of blood. So you cannot make artificial blood like this. Yes, I understood. Boy. Bye, sir. Bye, good day. Bye bye. See Thank you. you, sir. Bye. Bye bye.